آج میری ویڈیو کا عنوان ہے امام الانبیاء۔ یہ واقعہ مکمل تفصیل سے ہے اور مکمل سنیے گا۔ نبوت کے 12ویں سال رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو سرکار دو عالم اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آج کی رات جنت کو سجا دو، دوزخ کو بجھا دو اور حوران بہشت عمدہ نفیس لباس زیب تن کر لیں۔ سب فرشتے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مؤدب اور کمر بستہ ہو جائیں۔ میکائیل رزق کی تقسیم بند کر دیں۔ اسرافیل سور نہ پھونکیں۔ اسرائیل آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کریں۔ تمام قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ صفیں باندھے کھڑے حور و ملائک، کوئی نغمہ سا گایا جا رہا ہے۔ جبرائیل، آج کی رات وہ عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے جس میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام صف بستہ ہو کر میرے پیارے محبوب کا استقبال کریں گے۔ ستارے محبوب کے گرد راہ بن کے مزید درخشاں ہو جائیں گے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، خالق کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں نے ساتھ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لے کر میرے محبوب پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرو، ان اللہ تعالی یقرؤک السلام وَهُوَ يَدْعُوكَ وَأَنَا حَامِلُكَ إِلَى اللَّهِ تعالی۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انتخاب براق، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے۔ جا کر دیکھا تو وہاں 40,000 براق موجود ہیں، سب کے سب خوبصورت، ایک سے ایک بڑھ کر حسین، تمام کے تمام دل فریب و دلکش، سارے کے سارے چوکو چبند۔ ان کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آج ہمیں اس تاجداری کونین کی سواری کا شرف حاصل ہونے والا ہے، جس کے لیے عرش و آسمان کے مکین اور خود تمام چیزوں کی تخلیق فرمانے والے رب کائنات بے منتظر رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ ہر براق اپنے اپنے مقام پر مسرت و شادمانی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں نہ ہوتا ان میں سے کسی ایک خوش نصیب کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننا تھا۔ سبحان اللہ، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے کسی ایسی براق کا انتخاب کرنا تھا جو آپ کی شایان شان ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی عجیب امتحان کا وقت تھا کہ ہر براق بے مثال و با کمال ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے میرا انتخاب کر لیا جائے۔ حضرت جبرائیل نے ایک بار پھر ان سب کا جائزہ لیا تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا اور انہیں ایک ایسا براق نظر آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کے لائق تھا۔ وہ براق تھا تو انہیں 40,000 میں، مگر اس کی کیفیت ان سب سے الگ تھلگ تھی۔ دوسرے براق مچل مچل کر اظہار مسرت کر رہے تھے، مگر اس براق کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دوسرے براق گردن اٹھا اٹھا کر اپنے ناز و انداز کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر اس براق نے اپنی گردن نیچی ڈال رکھی تھی۔ دوسرے براق شاد اور مسرور تھے، وہ براق غمزدہ اور نجور تھا۔ وہ شادمان تھے، یہ پریشان تھا۔ ان کے چہروں پر
मुसर्रत थी, उसकी आंखों में आंसू थे। खुदाबंद कुद्दूस ने तो उसे पहले ही पसंद फरमा रखा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तवज्जो भी इधर ही हो गई और उसे पूछने लगे, ये रोने का कौन सा मौका है? सबके सब बुराक तो खुशियां मना रहे हैं, मगर तुम क्यों आंसू बहा रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम का सवाल सुना तो बुराक की आंखों से बहने वाले अश्कों के सैलाब में मजीद रवानगी आ गई। रोकर कहने लगा, यहाँ पर 40,000 आला से आला बुराक मौजूद हैं, मगर महबूब की सवारी के लिए तो सिर्फ एक की जरूरत है। रदास्त लिए रहा हूँ कि उन 40,000 में से मेरी बारी कैसे आ सकती है। हजरत जबरील मजाज शनाज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप जानते थे कि महबूब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम सफ़ात अरफा व आला के मालिक होने के बावजूद तवाज़ु इनकसारी फरमाते हैं। सारी कायनात के मालिक होकर भी तमाम कायनात आलम से ज़्यादा आजिज़ी फरमाते हैं। चुनाचे जबरील अलैहिस्सलाम ने बुराक को पैकर अज्जो इनकसारी बना हुआ देखा और मोहब्बत रसूल में मुस्तरक पाया तो उसी को महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए मुंतखब कर लिया। ऐसे ही किसी मकाम के लिए शायर ने कहा है, नाज करन जे चौड़े वालियां ते दतकारियां जावन, आजिज हून जे चक्कर बरियां कुरब हजूर पावन। बुराक को अपनी अज्जो इनकसारी की पूरी कीमत वसूल हो चुकी थी। अगरचे वो बुराक तमाम बुराकों से ज्यादा हुसीन व जमील और तेज तर्रार था, मगर काम उसका आजिज़ी ने ही बनाया था। बहरहाल जिब्रील अलैहिस्सलाम उस खुशकिस्मत बुराक को लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना अक़दस पर हाजिर हो गए। देखा तो महबूब फरमा रहे हैं, हजूर सरवरे कौनैन आज की शब अपना अर्शे बरी पर जाना जिब्रील अलैहिस्सलाम से ज्यादा जानते थे, लेकिन उस वक़्त आराम फरमाने के लिए लेटना भी एक अदाए महबूबा ना थी। हजूर इस्तराहत हैं और जिब्रील अमीन बारगाहे इज़्ज़ती में अर्ज करते हैं, मौला तेरे महबूब का मामला है, तेरा हुक्म है कि महबूब को जल्द लेकर आऊं। जल्दी करता हूं तो महबूब की बेअदबी का डर है, तू ही बता कैसे तेरे महबूब को जगाऊं। हुक्म खुदाबंदी हुआ कि ए जिब्राइल तेरी महबूब के कदमों को चूम लो। ए जिब्राइल महबूब के कदमों को चूम लो। जिब्राइल आस्तगी से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों के करीब बैठ गए और आपके नूरानी कदमों का बोसा ले लिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम के काफूरी लबों की ठंडक पहुंची तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्माने मुबारक खोल कर फरमाया, जिब्रील कैसे आना हुआ? अर्ज़ किया, हजूर खालिक़े कायनात ने आपको याद फरमाया है, मैं आपको लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरादा तहारत फरमाया तो दारोगाए जन्नत आपको आबे कौसर की 2 सुराहियां लेकर हाजिर हो गया। आपको आबे कौसर से गुस्ल दिया गया। गुस्ल के बाद आपने नूरानी जोड़ा ज़ेबे तन फरमाया तो फिर शब असरा की जलवाए रेज़ों का आलिम कुछ और ही हो गया। शब असरा के दुल्हा ताजदारे अंबिया हजरत उम्मे हानी के घर से उठकर बैतुल्ला शरीफ तशरीफ लाए तो वहाँ आपका शक्के सदर हुआ तो आप फरमाते हैं, पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे, उन्होंने मेरा सीना खोला, फिर जमजम के पानी से धोया। फिर जमजम के पानी से धोया, सोने की तश्ते हिकमत ईमान से भरा हुआ लाए, उसे मेरे सीने में पलट दिया, फिर उसे मला दिया यानी सी दिया। उसके बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा से बतहाए मक्का में लाए, जहाँ पर हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील 70,000 मलाइका कराम की जमात के साथ आपके इस्तकबाल के लिए सफ़े बस्ता खड़े थे। और जब हजूर ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान तशरीफ ले गए
तो दिल फरेब मंजर ये था। मलाइका के इस झुरमुट में आपको सवारी के लिए बुराक पेश किया गया, तो आप फरमाते हैं फिर हमें एक ऐसी सवारी पेश की गई जिसका कद खच्चर के कद से छोटा और गधे के कद से बड़ा था, और वो सफ़ेद रंग का था, और उससे ही बुराक कहते हैं। फिर आपको उस बुराक पर सवार होने के लिए अर्ज किया गया, तो आपको एकदम अपनी प्यारी उम्मत का ख्याल आ गया, तो आपने रंजीदा होकर सवार होने में तवक्कुफ किया। अरशाद खुदाबंदी है, ऐ जिब्राइल मेरे महबूब से तुम की वजह दरियाफ्त करो, मेरे महबूब से गम की वजह दरियाफ्त करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ महबूब आप गम ज़दा क्यों हैं? तो आपने फरमाया, जिब्राइल आज मुझे अल्लाह ताला की तरफ से तरह तरह की नेमतों से नवाजा गया है, नहायत अज़मत और शान के साथ अर्श पर बुलाने का एहतमाम किया गया है। मेरे लिए जन्नत के मलबूसात और बहिश्त बरी के पुरवकार सवारी भेजी गई। क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत भूखी प्यासी और गुनाहों का बोझ उठाए अपनी कब्रों से निकलेगी, तो 50,000 साल क़यामत के दिन पुलसरात 20,000 साल का, और बाल से बारीक और तलवार से तेज कठिन रास्ता किस तरह तय करेगी? तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की गम की वजह सुनी, तो अरशाद फरमाया, ए महबूब आप अपने कल्बे मुतहर से हर किस्म के रंजो गम को निकाल दे। जिस तरह आज मैंने आपको अजमत व शान और रिफत व सर बुलंदी की अता करके आपके लिए बुराक की सवारी भेजी है, इसी तरह क़यामत के दिन आपके हर उम्मती के लिए जिसके दिल में आपकी मोहब्बत होगी सवारी भेज दी जाएगी। चुनाचे रब्बे कायनात का फरमान है, जिस दिन हम परहेजगारों को रहमान की तरफ ले जाएंगे मेहमान बनाकर। मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि जब अहले तकवा को कब्रों से उठा लिया जाएगा, तो उनके लिए मज़ीद खूबसूरत करके नूरी सवारियों को अल्लाह ताला का मेहमान बनाने के लिए भेजा जाएगा। हजरत मौलाना नईमुद्दीन इस आयत मुकद्दसा के तहत ये रवायत नकल करते हैं। हजरत अली से रवायत है कि मोमिनीन मुत्तकीन मैशर में अपनी अपनी कब्रों से सवार करके उठाए जाएंगे, और उनकी सवारियों पर तलाई मुज़य्यन और पालान होंगे। बहरहाल जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर सवारी फरमाने लगे, तो उस बुराक ने बारगाह रसालत में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह खुदा का शुक्र है कि आपने मुझे अपनी सवारी के लिए मुंतखब फरमाया, और मैं अपनी इस खुशकिस्मती पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। मगर ए शब असरा के दुल्हा, कल क़यामत के दिन आज ही की तरह मुझ पर सवारी फरमाना। मेरे आका इस दिन मुझे फरामोश ना करना। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये अर्ज मंजूर फरमाई और फरमाया, ए बुराक खुश हो जा, हम क़यामत के दिन तुझ पर ही सवारी करेंगे। ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए, तो जबरील अलैहिस्सलाम ने रुकाबे थामी, मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ी, नूरी फरिश्ते हाथों में नूरी कंदीलें लिए सब बस्ता साथ साथ चले, और यूं लगता था कि फर्शे ताहर अर्श अनवारों तजल्लियात की बारिश हो रही है। नूरियों के जलवे में नूरी सवारी पर नूरे खुदा सवार होकर चले, तो दोनों जहान ही नूर के सांचे में डल गए। असनाए राह आपका गुजर एक ऐसी सरजमीन पर हुआ जहां सर सब्जो शादाब निखलस्तान में सरो कामत खजूर के दरख्त नहायत शाने दिल रुबाई से लहलहा रहे थे। हजरत जिब्राइल ने इस मकाम पर अर्ज किया, या रसूलल्लाह यहाँ 2 रकत नमाज अदा फरमा लीजिए। ये वो मकाम है, रश्के जन्नत है, जहाँ आप हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। चुनाचे ताजदार मदीना ने वहाँ 2 रकत नमाज अदा की, फिर सफर के लिए रवाना हो गए।
कब्र मूसा अलैहिस्सलाम। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सफ़र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से गुजरे, जिसके मुतल्लिक़ आपका इरशाद ग़रामी है, हमने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। इस फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम हुआ कि आप कब्र के करीब से गुजरते वक्त उसके तमाम हालात का मुशाहदा कर सकते हैं। तो यकीनी अमर है कि आप कब्र के अंदर जलवा फरमा होकर उम्मतियों के तमाम हालात से बाखबर हैं। फरियादे उम्मती जो करे हाले जार पे, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। चुनाचे शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंबिया कराम जिंदा होते हैं और अपने रब्बे ताला की इबादत करते हैं, जैसा कि अहले जन्नत में बिला तकल्लुफ इबादत करते रहते हैं। इसलिए सरकार आला हजरत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अर्ज करते हैं, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हम बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली का इशारा किया तो पत्थर में सुराख हो गया और उसके साथ बुराक बांध दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब हम मस्जिद अक्सा में तशरीफ ले गए तो देखा हमारे इस्तकबाल के लिए मलाइका कराम आए हुए हैं। चुनाचे उन सब फरिश्तों ने हमारी इस करामत और बुजुर्गी की खुशखबरी सुनाई जो खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार अक़दस में हमारे लिए मखसूस है। फिर फरिश्तों ने हमारी खिदमत में इस तरह सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या अव्वलु या आखिरु या हाशिरु। आप फरमाते हैं कि फरिश्तों का ये सलाम सुनकर मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा कि इन फरिश्तों ने हमें इन अल्फाज के साथ क्यों सलाम किया है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों ने आपको अव्वल इसलिए कहा है कि आप सबसे पहले शफाअत करने वाले हैं और आखिर इसलिए कहा है कि आप सबसे आखिरी नबी हैं, और हाशिर इसलिए कहा है कि क़यामत के दिन तमाम मखलूक के कब्रों से उठने की इब्तदा आप ही फरमाएंगे। चुनाचे जिब्रील अमीन की इस बात की तस्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आलिया से भी होती है। और हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन औलाद आदम का सरदार हूँ और मैं पहला वो हूँ जिसकी कब्र खुलेगी, और मैं पहला शफाअत फरमाने वाला और पहले मुतफक हूँ, यानी जिनकी सबसे पहले शफाअत कबूल की जाएगी। मस्जिद अक्सा में नमाज। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम और जिब्रील अलैहिस्सलाम दोनों मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, जहाँ तमाम अंबिया कराम मुरसलीन अज़ाम हाजिर थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों ने आपको देखकर अल्लाह ताला की सना की और आप पर दरूद पाक पढ़ा और सब ने आपके अफजलो अकरम होने का इतराफ़ किया। फिर अजान दी गई और तकबीर के कही गई। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने सफ़ें दुरुस्त की और इंतज़ार हो रहा है कि इमाम कौन बने। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अनवर थामा और मुसल्ला इमामत पर जलवाए ज़ू होने को अर्ज़ किया और मुसल्ला इमामत पर जलवाए अफरोज़ होने को अर्ज़ किया। चुनाचे फ़ख्रे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई और तमाम अंबिया कराम आपके मुक्तदी बने। आला हज़रत फरमाते हैं, नमाज अक्सा में था यही सरता आया हूँ, मायना अव्वलो आखिर के दस्ते बस्ता हैं पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। अंबिया से करूं अर्ज ए मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी। नमाज से फारग होकर जलीलुल कदर उलुल अज़म पैगम्बरों ने अल्लाह ताला की सना के बाद तहदीद नेमत के तौर पर अपने अपने फ़ज़ाइल व मोहम्मद खसाइस व मुहासिन बयान किए और उन अनामात के तज़किरे किए जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किए।
सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खिताब करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद इस खालिक़े कायनात का बेहद एहसान है कि उसने मुझे मिट्टी से बनाया, फिर अपना खलीफा बनाकर मसजूद मलाइका होने का शरफ अता किया, हवा को मुझसे पैदा फरमाकर मेरा जुफ्त बनाया और बहिश्ते भरी की बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया। हजरत इब्राहीम का खिताब, तमाम तारीफें उस ज़ात बारी के लिए है जिसने मुझे शर्फ़े दोस्ती बख्शा और मुझे मुल्क अजीम अता फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खिताब, तमाम तारीफ़ें इस ज़ात खुदाबंदी के लिए हैं जिसने मुझे शर्फ़े हम कलामी अता फरमाया और मुझे बरगज़ीदा किया। मुझ पर तौरात नाज़िल की, फ़िरौन की हलाकत और बनी इसराइल की नजात मेरे हाथों पर ज़ाहिर की और मेरी उम्मत को ऐसी कौम बनाया कि हक़ के मुवाफ़िक़ हदायत करते हैं और उसके साथ अदल करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा मुकम्मल फरमा लिया तो उनके बाद सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का खिताब अलैहिस्सलाम ने खिताब करते हुए फरमाया, हम्दो सना है उस ज़ात अक़दस के लिए जिसने मुझे ज़बूर का इल्म अता फरमाया और तालीम ज़बूर से बुजुर्गी बख्शिश कर मुझ पर एहसान फरमाया और मेरी आवाज़ को दिलकशी बख्शी। मेरे हाथों में वो कुव्वत रख दी जिसकी वजह से लोहा मेरे हाथों में मोम हो जाता है। पहाड़ों और परिंदों को मेरे लिए मस्खर कर दिया, यानी उन्हें मेरे ताबिया और फरमान बरदार कर दिया। जालूत जैसे सरकश को मेरे हाथों से हलाक कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके साहबजादे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे का आगाज़ करते हुए फरमाया, 7 तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मेरे लिए हवाओं को ताबिया कर दिया, जन्नून और शयातीन पर मुझे मुकम्मल तसल्लुत अता फरमाया और मुझे परिंदों की बोलियां समझने का इल्म अनात किया। मुझे बहुत बड़ी सल्तनत की हाकमियत का एजाज़ो कराम बख्शा। मुझे इतना बड़ा मुल्क दिया जो पहले किसी को ना दिया गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना करने के बाद खिताब फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे अपना कलमा और रूह होने का आज़ाज़ फरमाया, यानी मुझे कलमातुल्लाह और रूहुल्लाह बनाया और इस खालिक व मालिक ने सैयदना हज़रत आदम मेरी तख्लीक की तशबीह दी, इसलिए कि उसने मुझे बगैर बाप के पैदा फरमाया। मुझे मेरी वालिदा मुहतरमा के शिकमे अनवर में किताब का इल्म अता फरमाया। हिकमतों के खजाने जो तौरात और अंजील में मौजूद थे उन पर मुझे अतला बख्शी। मुझे ये कुव्वत अता फरमाई कि मैं मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंकता तो अल्लाह ताला के हुक्म से उड़ने लगते थे। अंधे कोड़ी और बर्स के मरीजों को अल्लाह ताला के अज़म से शफा देता था और मुझे अल्लाह ताला आसमान पर उठा ले गया। मुझे और मेरी वालिदा माजिदा को शैतान के शर से मुकम्मल अपने हिफाजत में रखा। इमामुल अंबिया का खिताब, अंबिया कराम के खिताब के बाद आखिर में इमामुल अंबिया पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 तारीफें रब्बे कायनात के लिए हैं। शुक्र है उस ज़ात अक़दस की जिसने हमें दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा और सारी कायनात और तमाम मखलूक़ात के लिए नबी बनाकर भेजा, सारी दुनिया के लिए बशीर और नज़ीर बनाया और मुझे किताब मुक़द्दस कुरान मजीद अता फरमाया जिसमें तमाम चीज़ों का बयान है। मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से बेहतरीन करार देकर खैरुल उम्म के लक़ब से सरफराज फरमाया और मेरे नाम को बुलंद किया। मुझे फातिहा और खातमुल अंबिया के लक़ब से मारूफ फरमाया। एक और रवायत में है कि आपने फरमाया, 7 तारीफें उस खालिक व मालिक के लिए हैं जिसने मुझे सारी कायनात से बुलंद बाला फरमाया। क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी ही कब्र अनवर को खोला जाएगा। मुझे कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और अंजील में मेरा नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुतबे साबका में मेरा नाम मोहम्मद और ज़बूर में महमूद रखा। फिर रहमत लिल आलमीन ने फरमाया, शुक्र है उस ज़ात वाले का जिसने तमाम रुए ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया, मिट्टी को तयम्मुम के लिए पानी का दर्जा दिया, मेरे लिए फतूहात में हदगे और अम्वाली गनीमत को जायज़ करार दिया और मलाइका कराम को मेरी मामनत के लिए मुकर्रर फरमाया, मेरी उम्मत के लिए ता क़यामत तौबा का दरवाज़ा खोल दिया और मुझे हौज़े कौसर अता फरमाया।